Hello students, in the last lecture we discussed about some of the grammar topics and also we discussed and solved some of the MCQs related to your board exams. And as far as I remember, this was the last MCQ. Okay, this was the last MCQ 54. I think our words will be well received if we stand on these four legs as soon as. And what was the answer, you know, because we already discussed it. Okay, let me tell me what was the answer. And I think our words will be okay. I think our words will be well received if we stand on these four legs as soon as. So the answer would be, tell me if you remember. What was the answer? We also discussed with the sentence formation in the lecture. Okay. And you remember the sentence formation as soon as, no sooner than, and hardly had when. Read the four options very well and then answer me. What is the true answer? As soon as, I think, as soon as our words will be well received if we stand on these four legs, four things. Ayush, Khushi, Pankit, Aryan, Yash, Grimal, Dhruv, Naina. Okay. Answer. Any student can answer. Unmute. You don't need to take permission. You can unmute yourself and answer the question. Sir, A. No, A is not the right answer. B. Yes, B is the right answer. Why B is the right answer? Because और बी में भी ये जो दूसरा सेंटेंस सेकंड सेंटेंस विल बी कम फर्स्ट एज सुन एज आई थिंक अवर वर्ड्स विल बी वेल रिसीव्ड वी स्टैंड ऑन दिस फोर थिंग्स ओके दिस वुड बी द राइट आंसर ये जो दूसरा सेंटेंस है वी स्टैंड ऑन दिस फोर लेग्स वो पहले आएगा एज सुन एज वी स्टैंड ऑन दिस फोर थिंग्स आई थिंक अवर वर्ड्स विल बी well received and I think I explained this sentence formation as soon as no sooner and hardly had okay 55 एंड बी एक्टिव इन द क्लास क्योंकि साइकोलॉजी बताती है कि जितने टीचर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं वो उस क्लास में अच्छा रिजल्ट नहीं आता इसमें जितने बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं उस क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है ओके सो बी एक्टिव whenever you want to ask anything ask without any hesitation and answer my questions 55 or knowledge had made us cynical make it exclamatory एक्सक्लेमेटरी बनाओ इसको okay do you want to learn assertive exclamatory let's learn okay assertive and exclamatory the sentence which starts with subject and ends with object that is called assertive sentence subject verb object okay in exclamatory there are many types of sentences the most important is what type sentences how to make assertive and exclamatory okay how what is used in both type of sentences let's learn for example if the sentence starts with verb if the sentence starts with what there must be article a or an suppose what a beautiful flower it is what a beautiful flower it is that means a flower kitna beautiful hai okay you know the meaning is obviously it's very much easy but the sentence formation the rules whenever the sentence starts with what not in interrogative format not in question format but in exclamatory format you can see that I have put here exclamatory mark there must be article a or an जब भी सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है तो वहां आर्टिकल ए या एन होना चाहिए ओके नहीं याद रहता है तो व्हाट का स्पेलिंग याद रखिए WHAT उसके स्पेलिंग में ए है तो उसके
सेंटेंस में भी ए या एन आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ओके, ए एक्सक्लेमेटरी है, इसका असर्टिव क्या होगा, इस तरह से होगा। ये जो लास्ट वाले वर्ड्स है वो हमें पहले लिखने हैं और इसका असर्टिव होगा और ये कैपिटल हो जाएगा। इट इज, ओके सॉरी, ओके फॉर्मेट सेंटेंस, इट इज अ very beautiful picture. It is a very beautiful picture. Extra, whenever you convert into assertive, you must have to add very, really, indeed, इस तरह से वर्ड आपको ऐड करने हैं when you convert into assertive. And don't forget to put full stop if sentence is assertive, and don't forget to put exclamatory mark if the sentence is exclamatory, otherwise you will not get the marks. Okay, फिर जो दूसरे सेंटेंस है वो है हाउ वाले सेंटेंस। सेंटेंसेस बिगिन विथ हाउ। हाउ में आपको याद रखना है कि व्हेनेवर द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हाउ, यू डोंट नीड टू पुट, आपको वहां पर क्या नहीं लिखना है, आर्टिकल नहीं लिखना है। जब व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ओके, तभी आर्टिकल लिखना है। हाउ वाले सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लिखना है। नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि मैंने जो इस तरह से बताया आपको कि व्हाट का जो स्पेलिंग है WHAT और हाउ का जो स्पेलिंग है HOW, जैसे हाउ में वो नहीं है आर्टिकल HAN उसके स्पेलिंग में, तो उसका जो सेंटेंस होगा उसमें भी आपको वो नहीं लिखना है। ओके, let us see the one example. For example, if the same sentence we convert into we want to make with how the sentence would be, how beautiful this flower is, this flower is। देखो यहाँ पर मैंने हाउ लिखा, बाद में ब्यूटीफुल लिखा, आर्टिकल यहाँ पर लिखा नहीं है, सो दिस इज द डिफरेंस। एंड व्हाट विल बी द आंसर, इसका असर्टिव किस तरह से होगा, द सेम फॉर्मेट, यहाँ से स्टार्ट होगा, ए कैपिटल होगा, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ये आंसर होगा उसका। ध्यान रखिएगा, आज मैं सब जितने स्टूडेंट है सबको एक एक सेंटेंस पूछने वाला हूँ इसमें से, तो क्या मेथड है वो ध्यान रखिएगा किस तरह से कन्वर्ट होता है। फिर एक होते हैं ओ दैट वाले सेंटेंसेस। ओ दैट वाले सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल, ओ दैट द डिजर्ट, ओ दैट द डिजर्ट वेयर माय ड्वेलिंग प्लेस। ओके, ओ दैट द डिजर्ट वेयर माय ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब पता है किसी को उसका मीनिंग, रहने की जगह। ओके, ड्वेलिंग प्लेस मतलब रेसिडेंस, अ प्लेस वेयर वी कैन लिव। हम डिजर्ट में जाते हैं, फिर देखते हैं डिजर्ट तो कितना ब्यूटीफुल है। ओके, और बाद में हम जो बोलते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी, अरे डिजर्ट में मेरा ड्वेलिंग प्लेस होता तो, मेरा घर अगर डिजर्ट में होता तो। ओके, चलो बताइए किस तरह से होगा इसका, कोई बोल सकता है तो बोलिए। My dwelling place is the desert. फिर से रिपीट करो आंसर। My dwelling place is the desert. माय The desert is my dwelling place. इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पर जो लिखा है ओ दैट, उसका कुछ आपको करना है। किस तरह से करना है, आप इसकी जगह पर ऐसा लिख दीजिए, आई विश दैट, आई विश दैट द डेजर्ट वेयर माय ड्वेलिंग प्लेस, इस तरह से। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप। बाद में फोर्थ वाले सेंटेंसेस, फोर्थ टाइप,
उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसमें अफ्रेड ऑफ वाले सेंटेंस है। अफ्रेड ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पर कि अ फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ फायर, एक्सक्लेमेशन है ना यहाँ पर, देखो अ फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ फायर, कि फायरमैन है और उसे फायर का डर लगता है, आग का डर लगता है, उसका तो काम ही है फाइट विद फायर। ओके, सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी। हाउ वुड बी द असर्टिव? Okay, I suppose no one know the answer. Let me teach. In these types of sentences, you have to add extra words. Okay, 3 or 4 you have to use extra words and make the sentence. Whenever the sentence consists of in these types of sentence, you have to begin like this. It is astonishing that. It is astonishing. ओके, ये ऐड करना है आगे, जैसे भी अफ्रेड वाले सेंटेंस हो तो यहाँ पर आगे आपको ऐड करना है इट इज एस्टोनिशिंग दैट, और बाद में फायरमैन लिखना है, और फायरमैन एंड की जगह पर लिख देना है इज अफ्रेड ऑफ फायर, अफ्रेड ऑफ फायर, और लास्ट में लिखना है फुल स्टॉप। ओके, इट इज एस्टोनिशिंग दैट अ फायरमैन इज अफ्रेड ऑफ फायर, इस तरह से आंसर होगा, और फुल स्टॉप लिखना मत भूलिए। एस्टोनिशिंग की जगह पर आप सरप्राइजिंग भी लिख सकते हो। एस्टोनिशिंग की जगह पर अगर अमेजिंग बात है कोई तो आप अमेजिंग भी लिख सकते हो, बट मोस्टली एस्टोनिशिंग इज प्रॉपर इन एवरी सेंटेंस। ओके, फिर फिफ्थ मेथड उसमें है इफ आई कुड ओनली वाले सेंटेंस। इफ आई कुड ओनली, डायरेक्टली सेंटेंस ही लिख देता हूँ, इफ आई कुड ओनली गेन द गोल्ड मेडल, गेन द गोल्ड मेडल, ये सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर जो इफ आई कुड ओनली एक्सक्लेमेटरी है। ओके, हम एनुअल फंक्शन में है और गोल्ड मेडल हमें नहीं मिला, देन व्हाट वुड बी द आवर डिजायर दैट इफ आई कुड ओनली गेन द गोल्ड, अगर मुझे गोल्ड मेडल मिल जाता तो। ओके, एक्सक्लेमेटरी। इसका असर्टिव इस तरह से होगा, ये जो लिखा है इफ आई कुड ओनली, उसको आपको रिमूव कर देना है। ओके, इसकी जगह पर आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखना है, वो है आई वेरी मच डिजायर, आई very much desire to gain the gold medal, to gain the gold medal. So this would be the answer. I very much desire to gain the gold medal. क्यों very much add किया? Because we are converting from exclamatory to assertive, so there must be the feeling of exclamatory. That's why we add here very. Now sixth sentence. सिक्स सेंटेंस में है एलास वाले सेंटेंस। एलास, दिस लाइफ इज लाइक अ बबल, दिस लाइफ इज लाइक अ बबल। अरे ये जिंदगी तो बबल जैसी है। एज यू नो दैट द पीरियड we are living with, we are facing with, okay, everywhere each where we are also afraid of to come out of our house home because of coronavirus, and some cases we see in our society that even 30-year age old, 40-year age old, इतनी एज के भी क्या होता है हम जानते हैं। सो वी कैन से दिस लाइफ इज लाइक अ बबल, बबल की जो लाइफ होती है कभी भी खत्म हो सकती है। अगर कोरोना नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है, तो अगर कल वो एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, 22 जो पेशेंट्स थे वो मर गए। अहमदाबाद की जो हॉस्पिटल में जो आग लगी थी उसमें कितने लोग जल के मर गए। ओके, सो दिस लाइफ इज लाइक अ बबल। तो यहाँ पर जो एलास लिखा है उसमें आपको वो एलास को रिमूव करना है, इसकी जगह पर आपको लिखना है it is a great pity, it is a great pity, बाद में लिखना है that, और बाद में ये सेंटेंस लिख देना है
This life is like a bubble. This life is like a bubble. ओके तो ये 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो आपको याद रखने हैं। देख लो फिर मैं आपसे सेंटेंस वो एक्सरसाइज जो है वो मैं आपसे पूछता हूँ उसके आंसर क्या है। ओके पहला वॉट वाला सेंटेंस, वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, उसमें आपको आंसर लिखना है इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। वॉट है तो आर्टिकल लिखना है। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, हाउ है तो आर्टिकल नहीं लिखना है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ओ दैट वाले सेंटेंसेस है तो यहाँ पर आगे लिख देना है आपको आई विश दैट द डिजर्ट वेयर माय ड्वेलिंग प्लेस। अफ्रेड ऑफ है तो उसकी जगह पर लिखना है इट इज एस्टोनिशिंग दैट अ फायरमैन इज अफ्रेड ऑफ फायर। इफ आई कुड ओनली गेन द गोल्ड मेडल तो उसका आंसर होगा आई वेरी मच डिजायर टू गेन द गोल्ड मेडल। इफ आई कुड ओनली रिमूव करना है इसकी जगह पर और भी वर्ड्स हो सकते हैं, दिस आर ओनली एग्जांपल्स। ओके हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इसके मतलब ये मेथड नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव कन्वर्ट करते हो तो वर्ड्स को आप रिमूव करते हो। एलास दिस लाइफ इज लाइक अ बबल, इट इज अ ग्रेट पिटी दैट दिस लाइफ इज लाइक अ बबल, इस तरह से। सो चलो अब आपकी बारी। ओके आयुष आपको आंसर देना है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। ओके पहले आयुष, चलो मैं नाम बोलता रहूंगा आप ध्यान रखिएगा। चलो आयुष 2 अक्टूबर किसकी बर्थडे है? आयुष सिंपल मैन की बर्थडे है, कौन सिंपल मैन? गांधी जी वॉज। व्हाट अ सिंपल मैन गांधी जी वॉज, कन्वर्ट इट इनटू गांधी एसआर। जी okay. बोलो। वही गांधी जी मतलब महात्मा गांधी। ओके मैंने लिख दिया, अभी इसको एसआरटी में कन्वर्ट करो। एसआरटी में कन्वर्ट करो आयुष, ये जो एक्सक्लेमेटरी लिखा है ना उसको एसआरटी में कन्वर्ट करो, क्या आंसर होगा? अभी ये सारी ये जो वीडियो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। आज ही बात हुई सर से कि सर कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, मेरे बच्चे में 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बाकी के सारे सुन नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो सर आज मुझे रिकॉर्डिंग भेजना, फिर मैं बात करता हूँ शाम को उन लोगों के साथ। बोलो अभी आयुष बोलो। गांधी जी ओके was a simple man. गांधी जी वॉज अ सिंपल मैन, समथिंग इज रॉन्ग। यस आयुष क्या रॉन्ग है? मैंने बोला था वेरी ऐड करो, गांधी जी वॉज अ वेरी सिंपल मैन, इस तरह से हो। ओके Okay, okay, ओके okay. चलो फिर खुशी पंचाल, सेकंड सेंटेंस यू हैव टू आंसर हाउ लाउडली यू स्पोक, हाउ लाउडली यू स्पोक। खुशी पंचाल अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द सेंटेंस। हाँ सर। यहां से स्टार्ट होगा आंसर, यू से। यू स्पोक लाउडली। नॉट लाउडली, यू स्पोक वेरी लाउडली, मैंने उसको समझाया ना आयुष को, अभी यहाँ पर वेरी ऐड करना है। ओके यू स्पोक वेरी लाउडली। ओके सर टू ऐड कर सकते हैं? नहीं टू ऐड नहीं कर सकते, यू स्पोक वेरी लाउडली, इस तरह से ही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट उसी के बाद आर्यन आपको आंसर देना है ओ दैट, यहाँ पर लिखता हूँ सेंटेंस में ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। आर्यन कन्वर्ट करो इसको एसर्टिव में। Yes, sir. I wish that I had wings of a bird. फिर से रिपीट करो बेटा आंसर। I wish that I had the wings of a ओके bird. परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड, आई विश दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। ओके गुड। ओके नेक्स्ट वन 4 a policeman and afraid of thief, policeman and afraid of thief। यश मालविया बोलो इसका आंसर।
is astonishing that a policeman Is. is afraid of theft. Okay, very good. Completed. Complete answer. Very good. Next one. Fifth one. How helpful the nature is. How helpful the nature is. ग्रिमल ग्रिमल बारो, जिसका भी अकाउंट है, मुझे नहीं पता आपका नेम है अकाउंट का नेम है, बोलिए। It is very helpful nature. नो नो नो, द नेचर इज वेरी हेल्पफुल, द नेचर इज वेरी हेल्पफुल, इस तरह से होगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन। अ स्टूडेंट एंड afraid of books, a student and afraid of books, Dhruv। The students are very afraid of books. फिर से रिपीट करो आंसर। The students are very afraid of books. नहीं, रॉन्ग है। अफ्रेड ऑफ है तो मैंने ये तो पर्सनली आपको इंडिविजुअली लिख के समझाया है, क्या ऐड करना है। नैना मालविया, बोलो इसका आंसर। नैना, सुना मैंने आपसे कहा बोलने के लिए। सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर नहीं। चलो ओके, अभी आंसर नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है बोलो इसमें। केविन बोलो आंसर। It is astonishing that a student is afraid of books. वेरी गुड। इट इज एस्टोनिशिंग, इट इज सरप्राइजिंग दैट अ स्टूडेंट इज अफ्रेड ऑफ बुक्स। मगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इसमें एस्टोनिशिंग वाली बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि आपके कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देख के क्यों डरते हो इतना। ओके चलो, पहली बार आज सबने आंसर दिया, गुड। लेट्स कम बैक टू आवर पीडीएफ बिकॉज द मेथड्स आर ओवर। और इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, अभी आपको पता चल गया। एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, असर्टिव में नहीं है, देन यू हैव टू ऐड समथिंग। ओके, इस तरह से सेम मेथड नहीं होगे, आपको according to the sentence pattern, according to the meaning, you have to add something. That was very much easy that I taught because that was the method. Okay, 55. Our knowledge had made us cynical. Make it exclamatory. चलो, what से होगा या how से होगा? मैंने आपको क्लू दिया, what अगर what या how से बनेगा। How say? ओके, हाउ से होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नहीं है। हाउ सिनिकल और नॉलेज हैज मेड अस, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, 56. There is a bright star in the sky. Make it exclamatory. There is a bright star in the sky. What a bright star. See. What bright star is in the sky. ओके, आर्टिकल है तो व्हाट से बनेगा। बाकी के स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, आर्टिकल है इसलिए द आंसर वुड बी सी। व्हाट अ ब्राइट स्टार इज इन द स्काई। एलास है वो तो सौरो या पिटे डिस्प्ले कर रहा है तो वो नहीं होगा। ओके, हाउ नहीं होगा, ओ टू बी वो भी नहीं होगा। ओके, 57. आई विश दैट आई हैड बीन बोर्न अ बर्ड। 57. See. सी कैसे होगा, और वो तो एंजॉय कर रहा है कि अगर मैं बर्ड होता तो। सी तो किस तरह से होगा। D. यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, ओ टू बी बॉर्न अ बर्ड, मैं बर्ड के तौर पर बॉर्न होता तो। बी इज द राइट आंसर। हाउ नहीं है, व्हाट नहीं है, वो तो आएगा ही नहीं। ओके, क्योंकि आई विश वाला सेंटेंस है तो। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। 58. ही कीप्स परफेक्ट टाइम। मेक इट एक्सक्लेमेटरी। For B, B. how perfect that is. He
keeps perfect time. B, how perfect time he kept. पास्ट कैसे हो गया? तो गलत है ना आंसर, पास्ट कैसे हो गया? O to keep perfect time, ये भी नहीं आएगा. Alas keeps a perfect time, ये भी नहीं आएगा. ये आएगा, मगर यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा, ये गलत है. यहाँ भी आर्टिकल होना चाहिए. He keeps a perfect time, बिकॉज एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है. What a perfect time he keeps. Okay. सर ये समझ नहीं आया. क्यों समझ में नहीं आया? वेरी मच इजी. आर्टिकल है, व्हाट अ परफेक्ट, ही कीप्स अ परफेक्ट टाइम. ओके, आर्टिकल है तो व्हाट से सिंपल, व्हाट अ परफेक्ट टाइम, और पहले जो दो वर्ड्स है वो लास्ट में लिखने हैं. व्हाट अ परफेक्ट टाइम ही कीप्स. एलास क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसमें कोई सौरो वाली बात नहीं है. ओ भी क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उसमें भी कोई सौरो जैसी बात नहीं है. हाउ क्यों नहीं लिखना है? ओके, क्योंकि एडजेक्टिव भी है, नाउन है. क्वेश्चन में गलती थी, ए नहीं था, वो मैंने लिख दिया. ओके, इसीलिए. और दूसरी भी बात थी, ये कैप्ट था यहाँ पर. ओके, कैप्ट था तो कैप्ट तो आएगा ही नहीं, बिकॉज वो पास्ट है. ओके, पास्ट तो है नहीं, तो वो नहीं आएगा. समझ में आ गया? ओके. 59. द वुमेन ग्रू हिस्ट्रिकल, मेक इट एक्सक्लेमेटरी. बहुत इजी है ये भी. The woman grew hysterical. D. Yes, right. How hysterical the woman grew. Okay, ये भी सही है, एलास वाला, मगर थोड़ी गलती है, इसीलिए आंसर नहीं आएगा. ये फॉर लिख दिया तो सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो रही है. अदरवाइज इसमें सौरव वाली भी बात है. ओके, इसलिए नहीं आएगा. 16. There are amazing things you can do with breathing. There are amazing things you can do with breathing. Make it exclamatory. C. Okay, article नहीं है तो C. 61. We need humanity more than machinery. बहुत अच्छी तरह पढ़ना स्टूडेंट्स सारे. क्यों? बिकॉज टेक्स्ट आपने पढ़ी नहीं है. ओके, शायद अभी पढ़ रहे हो, टाइम है तो. और ग्रामर में कुछ आता नहीं है, एबीसीडी से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से. और आप साइंस में हो तो पासिंग मार्क्स तो आपको लाने हैं 100%. ओके, तो पासिंग के लिए भी ग्रामर टेक्स्ट कुछ पता होगा तो लिखोगे ना. और ग्रामर टेक्स्ट नहीं है तो फिर आपका लिटरेचर भी पुअर होगा. तो फिर आप कॉम्पो, लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन वो किस तरह से अटेंड करोगे? मुझे याद कराना इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट, वो सब सिखाने के लिए भूल जाओ तो. ओके, इसलिए जो भी पढ़ते हैं अच्छी तरह परफेक्टली पढ़ना, कि ऑप्शन में जाने देंगे इस तरह से मत पढ़ना. चलो, एक कंप्लीट हो गया. अभी 61 से डिग्री आई. चलो, डिग्री आती है आप लोगों को, यस और नो? कि रिवीज डायरेक्टली सॉल्व करनी है या सीखनी है, बताओ. ओके. एक मिनट. ओके, सीखनी है तो चलो सीखते हैं डिग्री. देखिए, आप इतना बेसिक तो जानते हो. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्री, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव.
Whenever there is comparison in equal form, it is called positive degree. Whenever there is more or less, it is called comparative degree. And when is there is a feeling of superiority, okay, in the form of highest or lowest, this is called superlative degree. There are two methods that you have to learn, and both methods are different. Okay, let's learn the first method, method 1. Okay, in method 1, in positive degree, there are three types of sentences. In comparative degree, there are two types of sentences, and in superlative degree, there is only one type of sentences. So total 6 types of sentence formations you have to keep it in mind for method 1. ओके, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में किस तरह से। नाउ आई एम नॉट गोइंग, क्या होगा यार इसमें, ऑटो शिफ्ट। Now I am not going to teach you formations, I am teaching you directly sentences. Okay, so बहुत अच्छी तरह सीखना, किस तरह से सीखते हैं। पॉजिटिव में पहला सेंटेंस, उसमें बहुत ही सिंपल एजेस वाले सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल, सूरत इज एज बिग एज राजकोट। सूरत इज एज बिग एज राजकोट, ऐसे सिंपल एजेस वाले सेंटेंस। ओके, एज और ये इतना तो बेसिक आपको पता है कि पॉजिटिव में हम एडजेक्टिव होता है जो उसको बिना कोई चेंज किए, बिना जैसा है वैसे ही लिखते हैं। दूसरी पॉजिटिव डिग्री में हम अभी पॉजिटिव की जो 3 सेंटेंस फॉर्मेशन है वो पढ़ रहे हैं। ओके, उसमें नॉट वाली सेंटेंस में सेम है मगर नॉट सो ऐसा आएगा। फॉर एग्जांपल, भुज इज नॉट सो बिग एज अहमदाबाद। भुज इज नॉट सो बिग एज अहमदाबाद। यहाँ नॉट सो, यहाँ पर एज और यहाँ पर आएगा बिग। ओके, इस तरह से इसमें सेंटेंस आपको लिखना है। एक मिनट, फिर तीसरा, उसमें आपको नो अदर से लिखना है। नो अदर सिटी इज एज बिग एज अहमदाबाद। तो यहाँ पर एज और एज। ओके, मगर यहाँ पर डिफरेंट क्या है, स्टार्टिंग नो अदर से होता है। तो ये 3 सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद रखनी है फर्स्ट मेथड में पॉजिटिव। अभी कंपैरेटिव में 2 सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, उसके 2 सेंटेंस लिखते हैं, कौन से हैं। पहला, अहमदाबाद इज बिगर देन राजकोट। अहमदाबाद इज बिगर देन राजकोट। ओके, यहाँ पर ER टाइप फॉर्म और देन। ओके, इस तरह से। फिर दूसरी सेंटेंस, उसमें भी सेम सेंटेंस मगर लास्ट में कुछ डिफरेंस है। किस तरह से देखो, अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी। ये सिंगुलर लिखना है, ध्यान रखना, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी, सिंगुलर और फुल स्टॉप, ये कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें ओनली 1 सेंटेंस आपको लर्न करना है। उसमें अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी। अहमदाबाद, सर हाँ बोलो। वो साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा, राइट साइड का। एक मिनट कट रहा है। ओके, अभी कंप्लीट है। यस सर। ओके, अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी, इस तरह से। ओके,
द प्लस EST, उसमें आपको याद रखना है द प्लस EST। तो टोटल 6 सेंटेंस फॉर्मेशन हुई, पॉजिटिव 3, कंपैरेटिव 2 और सुपरलेटिव 1। ओके, इस तरह से 6 सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। ओके, अभी इसमें आपको चेंज द डिग्री, उसमें कोई भी सेंटेंस आ सकता है कि उसको चेंज द डिग्री और ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो आपको चेंज द डिग्री के रूल भी पता होने चाहिए फर्स्ट मेथड की। अभी हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसके रूल्स देखिए चेंज द डिग्री के। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री है तो आपको करना है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लिखा है तो आपको करना है पॉजिटिव डिग्री। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वर्ड है वो आपको लिखना है लास्ट में, और लास्ट वर्ड है वो लिखना है आपको फर्स्ट में। ये 6 रूल याद रखने हैं ओनली फॉर पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। और अगर सुपरलेटिव डिग्री है और फर्स्ट मेथड को बिलोंग करता है और उसमें चेंज डिग्री करनी है, ओके, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसका रूल, तो उसको आप पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कंपैरेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव ओनली, इसमें दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कन्वर्ट करने के लिए ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ए और ए 3 ओनली सुपरलेटिव के लिए, ये जो सुपरलेटिव है ना इसके लिए। ओके, देख लो फिर से, ये तीसरी वाली जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, एक ए और ये सुपरलेटिव की 1 2 और 3। ओके, और बाकी की जो है पहली दूसरी, इसमें पहली, उसके लिए आपको ये जो मैंने 6 रूल बताया आपको उसी को फॉलो करते हैं। चलो इसको हम यूज कर लेते हैं। सूरत इज एज बिग एज राजकोट, उसको हमें कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से सेंटेंस होगा, राजकोट नेगेटिव बनाना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है, और जो फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड है वो पहले लिखना है, और जो फर्स्ट वर्ड है ए वो लास्ट में लिखना है। ओके, देखो फिर से रूल देख लो, पहला वर्ड लास्ट में लिखना है, लास्ट वर्ड पहले लिखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर पॉजिटिव। ओके, इस तरह से, और पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव। राजकोट इज नॉट बिगर देन सूरत, इस तरह से होगा। ये जो बिग लिखा है, सॉरी, उसका हो जाएगा बिगर, राजकोट इज नॉट बिगर देन सूरत। ओके, इस तरह से। फिर ये दूसरा, भुज इज नॉट सो बिग एज अहमदाबाद। ओके, ये नेगेटिव है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, ये नॉट चला जाएगा कंपैरेटिव में। अहमदाबाद इज बिगर देन भुज, लास्ट वर्ड पहले, अहमदाबाद इज बिगर देन भुज। ओके, और ये सुपरलेटिव है, उसको आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आप ए नो अदर सिटी इज बिग एज अहमदाबाद, पॉजिटिव है, उसको कंपैरेटिव में ऐड करना है तो होगा अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी, सुपरलेटिव में ऐड करना है तो अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी। सो दिस वाज द मेथड 1, ओके, जो मैंने आपको बताई है मेथड 1। अभी मेथड 2, अभी आपको थोड़ा डर लगता होगा कैसे याद रहेगा, इजी है, एक बार पढ़ लो तो कुछ उसमें है नहीं है। मेथड 2 में भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ओनली 1 सेंटेंस फॉर्मेशन, कंपैरेटिव में भी 1, सुपरलेटिव में भी 1। चेंज द डिग्री के लिए पॉजिटिव है तो आप कंपैरेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सुपरलेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कंपैरेटिव है तो आप पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सुपरलेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और सुपरलेटिव डिग्री है तो आप पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कंपैरेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो देयर आर ओनली 3 सेंटेंस फॉर्मेशन। तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्टली मैं आपको सेंटेंस ही सिखाता हूँ, तो आप सेंटेंस ध्यान रखना।
किस तरह से, देखो पहला उसमें आपको याद रखना है पॉजिटिव के लिए वेरी फ्यू एज एस, पॉजिटिव में याद रखना है आपको वेरी फ्यू एज एस। तो इससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन याद आ जाएगी। किस तरीके से, देखिए वेरी फ्यू cities in Gujarat are as big as Ahmedabad. Very few cities in Gujarat are as big as Ahmedabad. यहाँ पर देखिए वेरी फ्यू। अब इसमें आपको कुछ याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिटीज लिखा है दैट मस्ट ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म। जिसकी भी कंपैरिजन करते हो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू एनिमल्स, वेरी फ्यू स्कूल्स, जिस बात की कंपैरिजन करते हो वो कंपलसरी यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। ओके, ए भी प्लूरल होना चाहिए। देखो यहाँ पर आर लिखा है, पास्ट है तो वेर, इस तरह से। बाकी का तो सिंपल है एस और बी, इस तरह से। ओके, तो I would recommend that not go for sentence formation but directly go for sentence and learn this sentence very well. कोई भी सेंटेंस आए तो इस पर से आप बना सकते हो। सो ये सेंटेंस को अच्छी तरह लर्न कर लेना। वेरी फ्यू सिटीज इन गुजरात आर एज बिग एज अहमदाबाद। चलो कंपेरेटिव में देखते हैं। उसमें आपको याद रखना है ER फॉर्म एडजेक्टिव प्लस देन मोस्ट अदर, या फिर आपको याद रखना है देन मैनी अदर। ओके, यहाँ पर बोर्ड बार बार चला गया, बाहर बोला नहीं आप लोगों ने मुझे। Okay, now there would not be any problem. That was comparative example. उसमें if the same sentence if you want to convert into comparative degree, ये जो अहमदाबाद लिखा है उसको आपको पहले लिखना है। यहाँ पर होगा अहमदाबाद is bigger, Ahmedabad is bigger than most other cities. Ahmedabad is bigger than most other cities. ये हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको is ER फॉर्म, फिर यहाँ पर than most other या many other, और ये कंपलसरी प्लूरल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एनिमल्स, सिटीज, हिल स्टेशन, जो भी कुछ है वो। ओके, और कंपैरेटिव में ओनली एक सेंटेंस है, सॉरी सुपरलेटिव में, उसमें आपको याद रखना है द प्लस EST फॉर्म। ओके, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ याद रखना है। सॉरी, नॉट ओनली द, आपको याद रखना है वन ऑफ द प्लस EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ओके, द सेम सेंटेंस में लिखता हूं, देखिए अहमदाबाद is one of the biggest, Ahmedabad is one of the biggest cities. Ahmedabad is one of the biggest cities. तो ये याद रखना है आपको, वन ऑफ द EST फॉर्म और यहाँ पर प्लूरल।
ओके, 3 सेंटेंस फॉर्मेशन हुई, देखिए फिर से बार। पहली जो है वेरी फ्यू सिटीज इन गुजरात आर एज बिग एज अहमदाबाद, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, वेरी फ्यू हिल स्टेशंस आर एज कूल एज शिमला, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज हॉर्स, इस तरह से। ओके, Ahmedabad is bigger than most other cities. Ahmedabad is one of the biggest city. ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद है तो उस पर से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, तो ये अच्छी तरह लर्न कर लेना सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, सो दैट वाज द डिग्री। अभी लेट्स कम बैक टू आवर पीडीएफ। ओके, आई ओके, डिग्री कहाँ से? ओके, 61 से स्टार्ट होती थी। वी नीड ह्यूमैनिटी मोर देन मशीनरी, चेंज द डिग्री। बोलिए इसका आंसर। वी नीड ह्यूमैनिटी मोर देन मशीनरी, तो हमारा रूल था ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ए है, देखो एक ए है, एक ए है और एक है। ओके, ये तो आएगा ही नहीं, तो ये 3 में से बताओ कौन सा एक आंसर सही है। यस, गुड। समझाओ तो कैसे आपने डिसाइड किया है ए? बिकॉज क्योंकि ह्यूमैनिटी की जरूरत मशीनरी से ज्यादा है, ऐसा बोला तो ए ऑप्शन में वो बेस्ट है। अच्छा, ऐसे ही डिसाइड कर दिया। एक्चुअली देखो उसके रूल परफेक्टली अप्लाई होते हैं। हमारे रूल क्या है, देखो मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ। पॉजिटिव है तो आपको कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाना है। पहला रूल। दूसरा रूल। तीसरा रूल कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको बनाना है पॉजिटिव। तो ये कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव के लिए एक यही सेंटेंस है। वी डोंट, नेगेटिव भी है, देखो ये पॉजिटिव है तो सो वी डोंट नीड सो मच मशीनरी एज मच वी नीड ह्यूमैनिटी। आपको आंसर आने वाले हैं एमसीक्यू में ऑफ कोर्स, मगर आपको कब पता चलेगा सही आंसर कौन सा है? ओके, आप JEE या नीट उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू तो मतलब ये सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू वाले ही है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी तभी डेवलप होगी जब आपको रूल्स पता है एग्जैक्टली। ओके, 62, दिस गर्ल हैजंट ग्रॉन टॉलर, चेंज द डिग्री। This girl hasn't grown taller, change the degree. A. This girl has grown as tall as others. Okay. Second, before this girl was not taller as she is now. Before this girl was as tall as she, this girl is not as tall as the other. Okay, तो नेगेटिव है तो ओके, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये असर्टिव, और ये कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव। ओके, इज द राइट आंसर। 63, I don't get as much respect as a dog does in that house, change the degree। पॉजिटिव में है। बी बॉम्बे या डी दिल्ली? दिल्ली सर। Yes, right. Delhi is the right answer. Okay, D. A dog gets, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव है as s. Okay, तो कंपैरेटिव होगा तो उसमें होगा more. Okay, a dog gets more respect in that house that I do. Okay, तो कंपैरेटिव है, so D is the right answer. Okay. 64. The mechanical donkey could trot much faster than the real article. Change the degree. चलो कंपैरेटिव है। B. 64,
बी फाइनल आंसर बोलो तो बाकी के स्टूडेंट। ये तो बी आपने किस तरह से, ये कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव में किया तो गलत है। यस यस ग्रिमल बारो, यस ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव करना है। ओके और ये ऐसा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव, तो कुडंट, द रियल आर्टिकल कुडंट ट्रॉट सो फास्ट एज द रियल आर्टिकल, सो ये इज द राइट। ऐसा ही सेंटेंस आएंगे और ध्यान रखना इससे इजी नहीं आएंगे। ओके इससे इजी नहीं आएंगे, सो अच्छी तरह याद रखना जो रूल मैंने समझा है। 65 he did his best and was honest, change the degree। डी। He did his best and was honest, no other could do as well as he did and was honest। डी। बी नहीं, दिल्ली के बॉम्बे? दिल्ली। नहीं वो गलत आंसर लगता है मुझे थोड़ा। सर बोलो आयुष। बी डी बी कैसे आएंगे, तो वो तो ऐसा पॉजिटिव है। कंपैरेटिव ऊपर पॉजिटिव है। ओके ही डिड हिज बेस्ट, अच्छा सुपरलेटिव लिखा है उसमें बेस्ट। ओके ये आएगा he did better than he could and was honest, he did better than he could and was honest। ये comparative। ओके यहाँ पर खत्म करते हैं। कुछ डाउट्स है तो पूछिए, अदरवाइज वी कंप्लीट और लाइक कितने स्टूडेंट्स है प्रेजेंट मुझे देखने को। आयुष, खुशी, आर्यन, यश, एक चला गया, कोई मुझे नाम ढूंढना होगा कौन चला गया यहाँ से। ओके कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज वी कंप्लीट और लेक्चर हियर। सर वो लास्ट वाले एमसीक्यू में डाउट था। लास्ट वाले एमसीक्यू में डाउट था, हाँ बोलो। वो सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो। देखो ये कंपेयर सुपरलेटिव है तो इसको हमने कन्वर्ट किया कंपैरेटिव में। ही डिड हिज बेस्ट, ओके उसने अपना बेस्ट किया, तो हमने क्या लिखा, ही डिड बेटर देन ही कुड, जो कर सकता था उससे भी बेटर किया, तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और डिग्री के जो सारे रूल है वो भी अप्लाई हो गए, दैट्स व्हाई। ओके इसीलिए। और इसमें क्या है देखो, ही डिड एज वेल एज अदर्स, तो मीनिंग वाइज गलत है। फ्यू कुड डू एज वेल एज, तो वो भी गलत है, फ्यू कहाँ से आ गया यहाँ पर, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। नो अदर कुड डू एज वेल एज ही डिड, जो जितना जितना उसने किया वो कोई नहीं कर सकता था, तो फिर ये चला गया बेस्ट वाला, तो इसमें भी ये भी गलत है, तो इसीलिए ये सही है। ओके अच्छी बातें पूछ लिया कि दूसरे कोई ऑप्शन में भी आपको ऐसा लगता हो कि बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है। कई बार ऐसा होता है क्यों कोई ऑप्शन सही है उससे ज्यादा दूसरे क्यों गलत है, वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ए, ओके दैट्स गुड यू आस्क, तो कुछ लोगों का सर डी सही है, मगर ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों गलत है ये तीनों। ओके चलो दूसरे क्वेश्चन को पूछने तो पूछिए। Okay, you can leave now. Thank you very much.